سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے، قومی سلامتی کمیٹی کا ممکنہ مزید بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ عسکری اقدامات نے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات کے عمل کو سیبوٹاج کیا ہے۔ اسی سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے ہمیں شہر رحمان صاحبہ نے جوائن کیا ہے، سینئر پولیٹیشین ہے۔ میم بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ اس ساری سچویشن کو آپ کس طرح سے انالائز کریں گی؟ جی آپ کے سامنے ہے یہ اعلامیہ۔ اس سے پہلے پاکستان کی پوزیشن منسٹری خارجہ امور کی منسٹری نے بھی سٹیٹ کی تھی، تو یہی ظاہر موقف ہے کہ جو جارحانہ اس وقت بلا اشتعال حملے ہو رہے ہیں ایران پر، اور جو ہوئے ہیں اور جو تواتر سے جاری ہیں، اس میں مطلب یہ ایسے وقت پہ ہوئے جب ایران نیوکلیر مذاکرات میں ملوث تھا اور منتظر تھا کہ یہ ختم ہوں گے۔ تو اس دوران یہ حملہ شروع ہونا ظاہر ہے ڈپلومیسی کی بھی نفی کرتا ہے۔ ظاہر اعلامیہ میں یہ تو نہیں لکھا جائے گا، نہ لکھا جاتا ہے، لیکن یہ انٹرنیشنلی یہ ڈپلومیسی اور پورے عالم میں جو ملٹی لیٹرل سسٹم ہے، خاص طور سے اقوام متحدہ کا پورا نظام، اس کو یہ مسترد کرتا ہے، یہ حملے مسترد کرتے ہیں اور ایک لا قانونیت سی اسٹیبلش ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے پاکستان نے کہا ہے کہ ہم نہ صرف مذمت کرتے ہیں، لیکن ہم سب پر یہ بات باور کرنا چاہتے ہیں کہ جتنے جلدی یہ مسئلہ اور کشیدگی حل ہو اور مذاکرات کی میز پر حل ہو، اتنا بہتر ہوگا ہر فریقین کے لیے۔ کسی کے لیے یہ اب اس کا پھیلاؤ میں سمجھتی ہوں کسی کے فائدے میں نہیں ہے، اور یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے آپ کے اعلامیے میں۔ جی خاص طور سے پاکستان کا بالکل شہر رحمان صاحب، سلامیے میں حق دفاع کو بھی تسلیم کیا گیا ایران کے، لیکن ہم اگر دوسری طرف دیکھتے ہیں تو امریکہ جس نے ابھی حملہ کیا ہے وہ اس حق دفاع کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ کہتا ہے کہ اگر ریٹیلیٹ کرے گا ایران تو اس کو مزید سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس رویے کو آپ کس طرح سے اس کے اوپر کامنٹ کریں گی؟ جی حق دفاع کو تو آپ نہیں کسی ملک کا آپ نہیں لے سکتے ان سے، اور دوگلی پالیسیز اب کوئی نہیں ماننے تیار ہے کہ آپ ایک ملک میں سوورنٹی جب آپ کی بریچ ہو تو اس کو کنڈیم کریں، جب دوسرے میں ہو تو آپ کہیں نہیں۔ جیسے یوکرین میں ہم نے کنڈیم کیا سوورنٹی کی جو حدیں کراس ہوئی تھیں، اسی طرح ہم یہاں بھی کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ ایک اور طرف کہا جاتا ہے، کچھ ممالک کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ایران کو نیوکلیر ویپن نہیں مل سکتا، نہ ہم یہ ہونے دیں گے، لیکن اسرائیل کے پاس غیر اعلامیہ نیوکلیر ویپن ہیں کہ نہیں، سٹاک پائل ہے، سب کچھ ہے۔ اس کو جو روگ بنا ہوا ہے دنیا میں، جو لا قانونیت کا پیکر بنا ہوا ہے، جو ہر قسم کی کھلی چھوٹ اور امپیونٹی سے دہشت پھیلا رہا ہے ہر ملک میں ارد گرد کے، تو ان پر کوئی سوال نہیں اٹھ رہا ہے۔ تو جب معیار اتنا دوہرا ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے پھر کوئی انٹرنیشنل آرڈر نہیں رہتا نا، اس کو پھر کوئی ماننے تیار نہیں ہوگا، اور یہ ایک بہت خطرناک سلپری سلوپ ہوگا۔ صحیح شہری صاحبہ، ہم جب یہ دیکھتے ہیں، ابھی آپ نے نیوٹرلائز کرنے کی بات کی، جو نیوکلیر ان کی ایمبیشنز ہیں اگر ہم کہہ لیں، تو ویسٹ ان کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے، امریکہ اور اسرائیل کے، لیکن ایران جو ہے وہ اس وقت مسلم دنیا کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو کیا مسلم دنیا میں کوئی کیپیسٹی ہے کہ وہ ہیلپ کر سکے، اور کیا مدد کی جا سکتی ہے ان کی، اور کیا توقعات ہیں کس حد تک پوری ہو سکتی ہیں؟ جی سوری آپ کی آواز کٹ گئی تھی۔ مسلم دنیا میں کیپیسٹی کی اگر آپ بات کر رہی ہیں تو دیکھیے کیپیسٹی چاہیں تو ہو سکتی ہے، لیکن آلریڈی مسلم دنیا میں سارے بیسز جو ارد گرد ایران کے ہیں، امریکہ کے سارے بیسز وہاں بنے ہوئے ہیں نا، سارے ان کے ڈیفینسز یا فارورڈ بیسز آپ جتنے گن لیں وہاں ہی مشرق وسطیٰ میں ہیں۔ تو وہ اپنی اسٹریٹجک کنسٹرینٹس اب ان کی ہو چکی ہیں، ان کو ایک دم چینج کرنا بہت ان کے لیے مشکل ہوگا۔ یہ تو پرانی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو ایران بھی ایک مشکل سے کہتے ہیں مخمصے میں پھنسا ہوا ہے، لیکن انہوں نے جرأت مندانہ طور پر اپنا دفاع کیا ہے۔ ان کے ساتھ اور بھی ممالک ہیں، اور پاکستان تو کافی ڈٹ کے کھڑا ہے جی، اپنے سارے ڈپلومیٹک اور
जियो पॉलिटिकल वजन के साथ। इन दैट सेंस सऊदी अरेबिया का भी एलामिया कमज़ोर नहीं था जी ईरान की दिफा में, जिनके साथ इनके ताल्लुक तारीखी तौर पे अच्छे नहीं हुए थे, लेकिन 2023 से बेहतर होने शुरू हुए। लेकिन बी दैट एज इट मे, उन्होंने ये उनके लिए काफ़ी सख्त एलामिया निकाला। अब पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में अपनी वहाँ स्पेस इस्तेमाल करते हुए सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद भी इनिशिएट की है रूस और चीन के साथ, लेकिन जाहिर है उसमें वोटिंग होगी और सिक्योरिटी काउंसिल में मुझे नहीं लगता कि ये वोटिंग वीटो नहीं होगा। अगर वीटो नहीं हुआ तो फिर बहुत पेशरफ्त हो सकती है जी। बिल्कुल, बड़ी मजबूत आवाज़ के तौर पे पाकिस्तान उभरा है, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। शहरी साहिबा, यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी ये खदशे का इजहार किया गया है कि एक साइकिल ऑफ रिटेलिएशन जो है वो हो सकता है ईरान की जानिब से। अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो खित्ते में क्या मंजरनामा देख रही हैं आप फ्यूचर में? नहीं, देखिए, साइकिल ऑफ रिटेलिएशन क्यों नहीं हो सकता? वो कह रहे हैं साइकिल ऑफ केओस बन जाएगा। यूएन ने तो, सेक्रेटरी जनरल ने कहा तो ये तो साइकिल ऑफ केओस बन जाएगा, क्योंकि उनका हक है अपनी दिफा करने का। और उनका ये भी कहना है कि हम सारी इंस्पेक्शंस जो न्यूक्लियर प्रोटोकॉल्स थे, IAEA था, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी, सब के कंप्लायंस में थे। और अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट NIA तुलसी गैबर्ड ने कहा, पब्लिकली टेस्टिफाई किया कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, जिसको खुद ही वहाँ मुस्तरद कर दिया गया। तो देखिए, ये इन हालात में ईरान वैसे भी वो बहुत ही एक वॉर हार्डन्ड मुल्क है और सैंक्शंस रेजिलिएंट रहते हैं खासे, तो वो तो उनकी तो जुनूनी कैफियत होगी जी, वो आखिरी इंसान तक लगता है बाशिंदे तक लड़ेंगे। और इस सूरत हाल में अगर उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ज़रा सा भी चोक किया तो फिर उसके बड़े दूरदराज असरात होंगे, क्योंकि ना सिर्फ खाम तेल लेकिन बहुत सारे ममालिक का LNG और एनर्जी वहीं से गुजरता है। 1/4 दुनिया का LNG तो ज़्यादा गुजरता है जी कतर, क्योंकि वहीं से सारा एक्सपोर्ट करता है। तो सिर्फ आप इसकी जो मैरिटाइम और दूसरी इम्पैक्ट देखेंगे इक्तिसादी, तो वो बहुत संगीन होगी जी, इसके शॉक्स होंगे दुनिया में। बिल्कुल, बड़ी इसकी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं अगर उस रास्ते को, बहरी रास्ते को बंद किया जाता है। शहरी साहिबा, रिजीम चेंज के बारे में जब सवाल किया जाता रहा, राबिता गालिबन हमारा ड्रॉप हो गया है। मीनवाइल अपने नाज़रीन को हम ये बताएं कि ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों से मुतालिक जो कौमी सलामती कमेटी का आज जो मुमकिन मज़ीद बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार सामने आया है। अस्करी इक़दामात ने ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात के अमल को सैबोटाज किया है। ईरान अमरीका तामीरी मुज़ाकराती अमल के दौरान फ़ौजी हमले किए गए। ये जो है आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जो जारी किया गया है उसके चीदा निकात हैं, जिसमें ईरान के हक के दिफा को पाकिस्तान ने तस्लीम किया है, मुसम्मत की है इजराइल और अमरीका के अटैक्स की जो ईरान में किए गए हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ खित्ते में किसी बड़े तनाज़े को हवा दे सकती हैं और बातचीत और सिफारतकारी के इम्कानात कमज़ोर हो रहे हैं इस किस्म की एग्रेशन के बाद जो अमरीका और इजराइल की जानिब से दिखाई जा रही है। और यूनिलैटरल ये एग्रेशन है और इसके बाद जो है खित्ते की सिचुएशन ख़राब हो सकती है, ये भी इस एलामिया में कहा गया है। कौमी सलामती कमेटी का ये अहम इजलास है जिसका एलामिया जारी किया गया है और इसमें आला अस्करी और सिविल क़यादत ने शिरकत की है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दौरा अमरीका पर भी शुरा को ब्रीफिंग दी है, लेकिन जो इसका सबसे अहम फोकस था वो ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले के बाद की सिचुएशन है रीजन की, उसके बारे में पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ जो है उस पर बात की है। कौमी सलामती कमेटी का जो मुमकिन मज़ीद बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार इसमें सामने आया है एलामिया में। और ये कहा गया है इस एलामिया में कि अस्करी इक़दामात ने ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात के अमल को सैबोटाज किया है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद सहाफ़ियों की ख्वाजा आसिफ से बात करने की कोशिश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गाड़ी में बैठे सहाफ़ियों से बात करने से इनकार सामने आया है। आपको बताएं कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है जिसके एलामिया से मुतालिक हम आपको बता रहे थे, जब ये इजलास ख़त्म हुआ तो उसके बाद सहाफ़ियों ने ख्वाजा आसिफ से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सहाफ़ियों से बात करने से इनकार कर दिया, जिसके मनाजिर भी आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। गाड़ी में वो मौजूद थे। इस दौरान सहाफ़ियों की जानिब से उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की गई, लेकिन गाड़ी में बैठे ही उन्होंने गुफ्तगू करने से इनकार कर दिया।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का विजन एलडीए के सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल से लाहौर की शक्ल तब्दील होने लगी। गुलबर्ग की बेशतर सड़कों पर खूबसूरत रंग बिरंगी टफ टाइल्स बिछा दी गई। फुटपाथ को पैदल चलने वालों और पार्किंग के लिए मुनफरिद अंदाज में डिजाइन किया गया है। स्ट्रीट लाइट्स, साइन बोर्ड्स और बेंचेस भी नस्ब कर दिए गए। शजरकारी भी की गई है। ज़ैनुल आबदीन की ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन लाहौर को लिवेबल और स्मार्ट सिटी बनाने का मंसूबा अमली शक्ल इख्तियार कर रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के तहत गुलबर्ग में मुतअद्दिद सड़कों की अपग्रेडेशन मुकम्मल, कुछ काम आखिरी मराहल में है। ज़हूर इलाही रोड, हाली रोड, सर सैयद रोड, B3 ब्लॉक, फैशन एवेन्यू और इनसे मुल्हिका सड़कों पर काम तेजी से जारी है। LDA ने बेशतर सड़कों पर खूबसूरत और रंग बिरंगी टफ टाइल्स बिछा दी। तमाम यूटिलिटीज को अंडरग्राउंड कर दिया गया है। फुटपाथ को पैदल चलने वालों और पार्किंग दोनों मकासद के लिए मुनफरिद अंदाज में डिजाइन किया गया है। साइकिल ट्रैक अलग से तामीर किया गया। ग्रीन बेल्ट को पेडेस्टेरियन जोन के तौर पर डेवलप किया गया है। स्ट्रीट लाइट्स, साइन बोर्ड्स और बेंचेस भी नस्ब कर दिए गए। मौजूदा दरख्तों को महफूज रखते हुए मजीद शजरकारी की गई है। DG LDA ताहिर फारूक ने कहा कि ये मंसूबा वज़ीर आला पंजाब के विजन का अमली नमूना है। हमारा मकसद सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी नहीं बल्कि लोगों के म्यार जिंदगी को बुलंद करना है। ये हमारा एक प्लान है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसके तहत हम जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो इसके इश्यूज़ हैं उस एरियाज़ के जिसमें भी हम ये काम करना चाहते हैं डेवलपमेंट का, उसको तमाम को एड्रेस किया जाए। हम प्रमोट करें कि जो हमारी फुटपाथ्स बन रही हैं उसके अंदर हम बड़े ट्रीज़ लगा रहे हैं ताकि चलने वालों के लिए साया बन सके और जो आपकी एनवायरनमेंट के इश्यूज़ हैं उसको हम बेहतर कर सकें। ये पहले ये 4 फुट की एक छोटी सी यहाँ पे फुटपाथ्स होती थी, ऊंची होती थी, जिस पर ना बंदा चल सकता था और ना उसका कोई यूटिलिटी थी। तो इसलिए अब हमने इसको तकरीबन ओपन अप कर दिया। इट्स अ 10 फीट वाइड फुटपाथ, 4 इंच की इसकी टोटल हाइट है। इसको आप ड्यूल पर्पस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं इमरजेंसी में पार्किंग की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस पर पार्किंग भी कर सकते हैं। गुलबर्ग के रिहायशियों और वहाँ से गुजरने वालों ने इस मंसूबे को मिसाली करार देते हुए कहा कि पैदल चलने वालों के लिए वॉकवेज बनाने का काम पहले कभी नहीं देखा। बुजुर्ग लोग होते हैं, नहीं चल पाते ज़्यादातर, उनको बैठने की एक साइड पर जगह मिलेगी, धूप से बचे रहेंगे, उनके लिए उनकी सेहत का भी ख्याल रखा जा रहा है। 100% से ना 80% हमें चेंजिंग नज़र आई है। ओबियसली एक टाउन है, एक डेवलपमेंट है, एक अच्छा जो है ना इम्प्रेशन पड़ेगा, एक अच्छी एक ब्राइटर लुक आएगी आपकी सोसाइटी की। मंसूबे के तहत हर इलाके का तशख़्ख़ुस उजागर किया जा रहा है। माहौल दोस्त डेवलपमेंट मॉडल को सामने रखते हुए पूरे इलाके का नक्शा बदल रहा है। गुलबर्ग का ये इलाका जहाँ खस्ता हाल सड़कें और बेतरतीब पार्किंग आम थी, अब वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत इसे जदीद और माहौल दोस्त मॉडल में ढाला जा रहा है। LDA सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के तहत जहां सड़कों की अपग्रेडेशन की जा रही है, वहीं लोगों का म्यार ज़िंदगी बुलंद करने पर भी तवज्जो दी जा रही है। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ ज़ैनुल आबिदीन, दुनिया न्यूज़, लाहौर। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पहले वो लबनान, फिर यमन और अब ईरान आ गए हैं। अगर हम ना बोले तो वो हम पर भी आएंगे, तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि इसराइल ने ईरान पर झूठ की बुनियाद पर हमले किए, हम इसकी मजम्मत करते हैं। जौहरी तनसीबात को हदफ बनाकर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई। अमरीका के ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले की भी शदीद मजम्मत करते हैं। अमरीका के लोग इस हमले की हिमायत नहीं करते। हमारे खित्ते में नेतन्याहू की सस्ती कॉपी मौजूद है जिसे जंग के मैदान और सिफारतकारी के मैदान में हरा दिया गया। भारत की पानी रोकने की धमकी आलमी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत सिंतास मुआहदे पर अमल करे वरना एक और बड़ी जंग होगी। This time first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. We strongly and vociferously condemn the US strikes. We must emphasize that an attack on nuclear facilities cannot be tolerated. हमारे खित्ते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है और मैं फख्र से कह सकता हूं कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया। जहां हम गए हमने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। हमारा फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद
व्हाइट हाउस में लंच खिलाया। क्या ये किसी शिकस्त शुदा फौज को इस किस्म का दावत दिया जाता है? हर महाज पे एक बार फिर भारत हारा, पाकिस्तान जीता। भारत के लिए फजाई हदूद की बंदिश में तौसी कर दी गई है और इस हवाले से नोटिम भी जारी कर दिया गया है। भारत के तैयारों पर पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश 1 माह के लिए बढ़ा दी गई है। आपको बताएं कि 1 माह के लिए ये बंदिश को बढ़ाया गया है। पाकिस्तानी फजाई हदूद 23 जुलाई तक भारतीय तैयारों के लिए बंद रहेंगी। भारत के लिए फजाई हदूद की बंदिश में तौसी का नोटिम भी जारी कर दिया गया है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ बिलाल नसीर ने हमें ज्वाइन किया। बिलाल, क्या मजीद डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये भारत के लिए फिजाई हदूद जो है मुकम्मल तौर पर जो बंदिश का नोटम है 1 माह के लिए उसमें तौसी की गई है, जिसमें भारतीय रजिस्टर्ड और लीज पर लिए गए तमाम तैयारे जो हैं वो पाकिस्तानी फिजाई हदूद इस्तेमाल नहीं करेंगे। भारतीय एयरलाइंस के साथ साथ जो फौजी तैयारे हैं या उनके जो चार्टर तैयारे होते हैं उन पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी रहेगी और इतलाक जो है वो 23 जुलाई तक जो है वो बढ़ा दिया गया है। हालिया कशीदगी जो हुई थी उसके बाद ये बंदिश की गई थी, जिससे अब भारतीय एयरलाइंस को करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है और 1 महीना मजीद जो है वो उठाना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया बिलाल नसीर, आपने हमें मालूमात दी।